Hello dear students, we are going to begin with criteria for similarity of triangles. Criteria for similarity of triangles. So just see, two triangles are similar, are said to be similar if their corresponding angles are equal. If their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Means two triangles are said to be similar. Two triangles are said to be similar when their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. So just see. A triangle ABC is there, triangle ABC and a triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF. So corresponding angles, angle A should be equal to angle D, B equals to E, C equals to F. मीन्स एंगल ए हमारा डी के इक्वल होना चाहिए, बी ई के इक्वल होना चाहिए और सी किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के. तो ट्राइंगल सिमिलर कब होगा, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ व्हेन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ एंड द साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल. तो ए बी अपॉन डी मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो ये वाली ए बी तो ये डी, मतलब ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ. तो जस्ट सी ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, सी अपॉन डी एफ. मीन्स इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. मतलब बेसिक चीज इतनी है कि क्राइटेरिया क्या है, all three angles should be equal and all sides should be proportional. मतलब their corresponding sides should be proportional and their corresponding angle should be equal. So one more point to see, if triangles are equiangular, if triangles are equiangular then they are similar. If triangles are equiangular then they are similar. This we see in next page. Theorem 1, angle 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 similarity. Theorem 1, angle 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 similarity. Okay, so if two triangles, if in two triangles, so angle 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 similarity, if two triangles, if in two triangles the corresponding angles are equal, the corresponding angles are equal, then the corresponding sides are proportional. If their corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar. Okay, theorem क्या है, in triangle ABC and triangle DEF, if their corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal means A angle D के equal, angle B equal, C is equal to F. If their corresponding angles are equal then their corresponding sides are proportional. Given क्या है, angle A equals to angle C, angle D, angle B equals to angle E, angle C equals to angle F. A D के equal given है, B E के equal given है और C F के equal given है. तो just see, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, एबीसी सिमिलर है डीईएफ के. एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे इन थ्योरम्स में, तो जस्ट कीप इट इन माइंड. वी कट डीपी इक्वल्स टू एबी, वी कट डीपी इक्वल्स टू एबी. डीपी किसके इक्वल कट कर रहे हैं, एबी के. वी कट डीपी इक्वल्स टू एबी एंड डीक्यू इक्वल्स टू एसी, डीक्यू इक्वल्स टू एसी. इसमें से क्या किया, डीपी कट किया ए बी के इक्वल, डी क्यू कट किया ए सी के इक्वल और क्या कर दिया, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया. तो जस्ट सी, वी कट डी पी इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी एंड देन वी ज्वाइन पी क्यू. नाउ जस्ट सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू. ए बी जो है डी पी के इक्वल है, अभी कंस्ट्रक्शन किया, ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, और ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के. ए बी इक्वल्स टू डी पी and AC equals to DQ and AC equals to DQ. तो जस्ट सी, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D ये गिवन है, एंगल A किसके इक्वल है, D के, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D इज गिवन, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D इज गिवन. तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DPQ के. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPQ, ABC DPQ के कॉन्ग्रेंट है. क्यों, AB डीपी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई. तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी पी क्यू बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी. जब से ही कॉन्ग्रेंसी प्रूव हुई तो क्या हुआ, बाकी चीज़ें भी इक्वल हो गई, मतलब एंगल भी हमारा पी के इक्वल हो गया, एंगल भी किसके इक्वल हो गया, पी के, और एंगल सी क्यू के इक्वल हो गया. तो एंगल बी इक्वल्स टू पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू क्यू. ओके, नाउ जस्ट सी, triangle ABC is congruent to DPQ. Triangle ABC is congruent to DPQ. ABC is congruent to DPQ. Congruent हो गया, लेकिन गिवन क्या है, B E के इक्वल है. B किसके इक्वल है, E के, लेकिन B हमने P के इक्वल किया. B किसके इक्वल हो गया,
पी के, बी किसके इक्वल हो गया, पी के, और ई पी के इक्वल हो जाएगा। फिर जब बी पी के इक्वल है तो ई भी पी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई इज गिवन। सो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, ई एफ के, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। जस्ट सी, तो डी पी अपॉन पी डी, डी पी अपॉन, जस्ट सी, डी पी अपॉन पी, डी पी अपॉन डी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। implies that AB upon DE and CA upon FD। क्यों? AB DP जो है वो AB के इक्वल है, DP इक्वल्स टू व्हाट, AB, एंड DQ इक्वल्स टू AC। DP किसके इक्वल है, AB के, और DQ किसके इक्वल है, AC। यही तो कंस्ट्रक्शन की थी। तो DP के प्लेस पे AB रख दिया और DQ के प्लेस पे CA। तो जस्ट सी, AB अपॉन DE और CA अपॉन FD, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। AB upon DE, AB upon DE and CA upon DF. Similarly, we can prove AB upon DE, AB upon DE equals to BC upon EF. Similarly, we can prove AB upon DE, AB upon DE, BC upon EF, BC upon EF के इक्वल ले आएंगे। AB upon DE, BC upon EF ये ले आएंगे। ठीक है, तो जस्ट सी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। भाई ए बी अपॉन डी सी ए अपॉन एफ डी और ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ। तो जस्ट सी, ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ एंड सी ए अपॉन एफ डी। ओके, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो एंगल्स हमारे किसके इक्वल थे, जस्ट सी, ए डी के इक्वल था, बी ई के इक्वल था, सी एफ के इक्वल था, और साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। साइड किसमें प्रोपोर्शनल हो गई, AB upon DE, BC upon EF and AC upon DE. Okay, AB upon DE is equal to BC upon EF, CA upon FD. Hence, triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, just see a corollary. Corollary means sub part of a theorem. Sub part of a theorem, angle similarity. वो क्या थी, angle similarity. This is angle similarity. तो if two angles of one triangle are respectively equals to two angles of another triangle, then two triangles are said to be similar. Means angle D के इक्वल है, angle B angle E के इक्वल है। तो तीसरा क्या है, C अपने आप F के इक्वल हो जाएगा। हाउ इट इज, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना भाई, इन दोनों का सम ले लिया। जैसे मान लो ये 60 ये 40, तो ये भी 60 ये भी 40, तो कितना हो गया 100, बाकी 180 से माइनस किया तो ये 80 हो जाएगा। तो जस्ट सी, थर्ड एंगल जो सी होगा, थर्ड एंगल एफ के अपने आप इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो दस टू ट्राइंगल्स आर इक्व एंगुलर, तो इक्व एंगुलर है, हेंस दे आर सिमिलर। दिस आई टोल्ड यू ना कि आगे मिलेगा। तो दस टू ट्राइंगल्स आर इक्व एंगुलर, हेंस दे आर सिमिलर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क हो गया कि अगर कोई टू ट्राइंगल्स हमारे इक्व एंगुलर हैं तो वो सिमिलर होंगे। दिस वी हैव प्रूव्ड इन द फर्स्ट थ्योरम। एंगल सिमिलरिटी में क्या हुआ, थ्री एंगल्स इक्वल थे तो साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूफ किए, उसके बाद क्या हो गया कि ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। तो दस वी कैन से इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्व एंगुलर हैं तो कैसे होंगे, दे आर सिमिलर। ओके, जस्ट सी थ्योरम 2, साइड सिमिलरिटी। If the corresponding sides of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal। ठीक है, वहां पर क्या था, एंगल्स इक्वल थे, साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव करनी थी। यहां पर क्या गिवन है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड वी नीड टू प्रूव देयर ट्राइंगल एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन है, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ओके, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल गिवन है, प्रूफ क्या करना है, एंगल्स इक्वल है। ओके, तो जस्ट सी, ये प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ। पहले क्या, एंगल्स इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान समझिएगा कंस्ट्रक्शन में बहुत ध्यान से, कि हम टू ट्राइंगल्स ऐसे लेंगे, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, जिसमें मतलब उनका रेशियो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब इधर वाला बड़ा होना चाहिए डी एफ। उसमें से साइड्स कट करनी है, वही सेम चीज, डी पी कट करेंगे किसके, ए बी के इक्वल, डी क्यू कट करेंगे ए सी के इक्वल, और क्या करेंगे, पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। देन वी ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। तो जस्ट सी, ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ,
ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ, ये तो गिवन है ना, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, इट इज गिवन ना. तो व्हाट वी नीड टू प्रूव भाई, ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ, ये सब गिवन है. तो जस्ट सी ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ, इट इज गिवन. हाँ या ना. तो ओके, ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल गिवन है. तो ए बी डी पी के इक्वल था और ए सी डी क्यू के इक्वल था. तो ये डी पी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डी एफ, एज ए बी वॉज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ डी क्यू. Any problem with that? By the converse of Thales theorem or converse of basic proportionality theorem, PQ will be parallel to EF. PQ will be parallel to EF. Why it is? B given है ना, dP upon D, dP upon DE and dQ upon DF, dQ upon DF, dP upon DE, dQ upon DF, they are equal. Then the lines are parallel. dP upon D and dQ upon dF, then these two lines are parallel by converse of basic proportionality theorem. So PQ parallel to EF. Now just see angle P equals to angle E, angle P equals to angle E. एंगल P किसके इक्वल है? एंगल E के, क्योंकि लाइंस पैरेलल हो गई. और Q किसके इक्वल हो गया? F के. Q किसके इक्वल हो गया? F के. तो जस्ट सी एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. तो बेसिकली दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए हमारे? ये सिमिलर हो गए. DPQ इज सिमिलर टू DEF, DPQ इज सिमिलर टू DEF. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और ये तो कॉमन है. तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे? सिमिलर हो गए. ठीक है. तो DPQ इज सिमिलर टू DEF. तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट DP अपॉन DP upon D is equal to PQ upon EF is equal to PQ upon EF. DP upon D is equal to PQ upon EF. Sides are proportional ना. तो PQ upon EF और DP upon D. Why? Because their sides are proportional. तो DP upon D equals to PQ upon EF. But DP हमारा किसके इक्वल है? AB के. DP किसके इक्वल है? AB के. PQ upon EF ऐसा ही है. DP की जगह AP हो गया, AB upon D. क्लियर है? सिंस DP इक्वल्स टू AB. और दूसरी चीज क्या है? AB अपॉन D BC अपॉन EF के इक्वल है. AB अपॉन D BC अपॉन DF के EF के इक्वल है. ओके. AB अपॉन D BC अपॉन EF के इक्वल है. सो AB अपॉन D BC अपॉन EF के इक्वल है. तो जस्ट सी इन दोनों को कंबाइन कर दें. अगर कंबाइन करेंगे तो PQ अपॉन EF BC अपॉन EF के इक्वल हो गया. तो PQ अपॉन EF BC अपॉन EF के इक्वल है. मतलब क्या हो गया? PQ BC के इक्वल हो गया. PQ किसके इक्वल हो गया? BC के. PQ इक्वल्स टू BC. ठीक. दस AB हमारा DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है और DC PQ के इक्वल है. ठीक है. AB DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है, DC PQ के इक्वल है. ध्यान से देखिए. AB इक्वल्स टू DP by construction, AC equals to DQ by construction, and here it is what? DC equals to PQ. हमारे पास में क्या हो गया? BC किसके इक्वल हो गया? PQ के. BC आ गया हमारा PQ के. ओके. तो जस्ट सी AB DP के इक्वल हो गया, AC DQ के इक्वल हो गया एंड BC हमारा किसके इक्वल हो गया? PQ के. BC हो गया PQ के इक्वल. तो ट्राइंगल ABC is congruent to DPQ. Why? AB DP के इक्वल, AC DQ के इक्वल, BC PQ के इक्वल. जस्ट वी प्रूव दैट BC इक्वल्स टू PQ. ओके. तो जस्ट सी ट्राइंगल ABC is similar to triangle DPQ. ओके. ट्राइंगल ABC is similar to triangle DPQ. एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल P के इक्वल है. तो P हमारा E के इक्वल है. P किसके इक्वल है? E के. एंगल C एंगल Q एंगल F PE के इक्वल है और C हमारा Q के इक्वल था. C इक्वल्स टू Q एंड विच इज इक्वल टू F. तो जस्ट सी एंगल B एंगल P के इक्वल है, हैंस इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q. E C Q के इक्वल है विच इज इक्वल टू F. तो जस्ट एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है. दस गिवन ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, हैंस दे आर सिमिलर. ओके.
नेक्स्ट थ्योरम SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है और साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं होती। साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ other triangle, okay, if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar, तो just see क्या बोल रहे हैं, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC and DEF, okay, यही ले रहे हैं ना, ABC and DEF, we have the two triangles ABC and DEF, we have the two triangles। तो just see given है कि angle A equals to angle D, angle A equals to angle D, it is given, and AB upon DE equals to AC upon DF, AB upon DE is equal to AC upon DF, ये इक्वल गिवन है और ये एंगल इक्वल गिवन है। तो जस्ट सी इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल A इक्वल्स टू एंगल D एंड AB upon DE AC upon DF के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। वही काम करेंगे, वी टेक ट्राइंगल ABC एंड DEF सच दैट AB upon DE और AC अपॉन DF कैसे, लेस देन 1 लेंगे, लेस देन 1, और एंगल D के इक्वल है। क्या कर लेंगे इसमें से, DP कट कर लेंगे AB के इक्वल, वही काम कर रहे हैं बराबर, ठीक है। DP कट कर लेंगे AB के इक्वल और DQ कट कर लेंगे AC के इक्वल, ठीक है। तो DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC, देन AB DP के इक्वल है, AB DP के इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, AC इक्वल्स टू DQ हो गया, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ध्यान से समझिएगा, इट इज गिवन देयर ना, AB DP के इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, AC इक्वल्स टू DQ। जस्ट सी AB DP के इक्वल, AB इक्वल्स टू DP, AC इक्वल्स टू DQ एंड दिस एंगल इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABC DPQ के कॉन्ग्रेंट हो गया बाई SAS कॉन्ग्रेंसी। तो एंगल D के इक्वल है, ओके, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के, और एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल P के, एंगल B किसके इक्वल हो गया, P के, और C किसके इक्वल हो गया, Q के। A D के इक्वल, B P के इक्वल, C Q के इक्वल, इक्वी एंगुलर हो गए ना दोनों, इक्वी एंगुलर। तो ध्यान समझिए, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, AB अपॉन DE और AC अपॉन, तो ये इक्वल है यहाँ से, क्लियर है। AB अपॉन, जस्ट सी AB अपॉन DE AC अपॉन DF के इक्वल गिवन है, AB अपॉन DE AB अपॉन DE एंड AC अपॉन DF इक्वल गिवन है ये, ओके। DP अपॉन DE क्यों, AB के प्लेस पे DP पुटअप कर सकते हैं, यही तो कट किया था, और AC के प्लेस पे DQ, तो DP अपॉन DE एंड DQ अपॉन DF ले लिया यहाँ से। तो DP अपॉन DE एंड DQ अपॉन DF, तो क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल हो गई, कैसे, बाय थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से, और यू कैन से कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो PQ पैरेलल टू EF बाय कन्वर्स ऑफ BPT। जैसे ही पैरेलल हुआ तो एंगल P किसके इक्वल हो गया, E के, और एंगल Q F के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल P इक्वल्स टू E एंड एंगल Q इक्वल्स टू F. Why? Because they are the corresponding angles. Hence, now we can say A equals to D. Angle A D के इक्वल है, ओके। B किसके इक्वल है, B जो है वो किसके इक्वल है, P के, लेकिन P E के इक्वल है, ठीक है। और C किसके इक्वल है, Q के, लेकिन Q F के इक्वल है। तो जस्ट सी एंगल A D के इक्वल है, B E के इक्वल है, ठीक है। B E के इक्वल और E P के इक्वल है, तो B इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, C इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू F। तो दस वी कैन से एंगल A D के इक्वल है, एंगल B E के इक्वल है, एंगल C F के इक्वल है। तो जस्ट सी एंगल A D के इक्वल है, एंगल B E के इक्वल है, एंगल C F के इक्वल है। तो ट्राइंगल्स कैसे हो गए, ABC और DEF इक्वी एंगुलर हो गए ना, ABC और DEF इक्वी एंगुलर हो गए। तो जैसे ही इक्वी एंगुलर हुए ट्राइंगल्स, so the given triangles are equiangular, or hence
सिमिलर। सिमिलर क्या हो गए? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये जैसे ही इक्विएंगुलर होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। दिस इज द important remark. If two triangles are equiangular, then they are similar. So the given triangles are equiangular, hence they are similar. So we got the three theorems. The first it was angle similarity, another one was side similarity, and the third was SAS similarity. Okay, so just try to continue with them and practice them. Okay.